Hello guys, this is the part 3 of our chapter number 2. Today we'll be discussing about the opportunity cost, type of opportunity cost, their formulas, why PPC curve is downward sloping, reason of concave shape, and why MRT is increasing. This is very important. By the end of the video, this question will be answered today. Okay. Moving on to opportunity cost. What is opportunity cost? It is the cost of availing one opportunity in terms of losing the other. In my previous videos also, I have explained this term. It is कोई भी एक opportunity को gain करने के लिए we need to sacrifice the other unit of other goods. Okay? Or in simple language, it could be explained as cost of shifting resources from use 1 to use 2 or from good 1 to good 2. And in more simpler language, it could be defined as the next best alternative available. When I say alternative, in my very first chapter, I have explained you the meaning of resources, and there I have told you about the characteristics of resources. One was alternative, गुड्स अवेलेबल. ओके ना. तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव हमेशा अवेलेबल होते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट यूजिंग द डायग्राम. दिस फिगर रिप्रेजेंट द पीपीसी कर्व A to B. If I say good, on my y axis I have unit of Maggi and on my x axis I have unit of pasta. Earlier I was producing O to A unit of Maggi while O to G unit of pasta, and my maximum ability, my total production could be 0 to point A Maggi ki, and in case of pasta it could be 0 to B. But due to change in demand or other factors in the market, I got to know as a producer that demand of pasta has increased. So I thought of utilizing my resources in a specialized or a better way. So I thought of reducing the unit spent on production of Maggi to reduce and to increase the unit of resources in making of pasta. Okay, so I reduced it to point C. पहले मैं मैगी पॉइंट A तक प्रोड्यूस कर रही थी, अब मैं पॉइंट C पे प्रोड्यूस कर रही हूँ. मेरा यूनिट कम कर दिया तो लॉस ऑफ यूनिट ऑफ मैगी हो रहा है. जब मैं मैगी की यूनिट कम की है तो मैंने पास्ता की यूनिट ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है मैं यहाँ ज़्यादा लगाऊंगी, तो मैंने इसकी यूनिट इंक्रीज कर दी. तो मैं पहले G यूनिट तक प्रोड्यूस कर रही थी, अब मैं O to H यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ ऑफ पास्ता. सो फॉर प्रोड्यूसिंग वन गुड और फॉर यूजिंग वन गुड I have to sacrifice the unit of other good. I hope the definition is clear here. Now, moving ahead to the result of this figure, it means the loss of output in use of one good is equal to the gain of output in use of second good, which was pasta. Okay. Now, talking about the type of opportunity cost, it is divided into two parts, total and marginal. When I say total, it is the total loss of output when given resource are shifted from use 1 to use 2 or for say are shifted from Maggi to pasta. Okay, मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी टोटल प्रोडक्शन की क्या है मेरी O to A मैगी की, और पास्ता की टर्म्स में क्या है वो O to B में. ठीक है ना. तो उसके अंदर टोटल कॉस्ट क्या हुई मेरी O to A इन टर्म ऑफ मैगी विच इज गुड 1, और B के टर्म में टोटल कॉस्ट क्या हुई मेरी O to B विच इज गुड टू पास्ता. ओके, मूविंग टू सेकेंड टाइप, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों ही सेम बात होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स, दिस टर्म विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. मार्जिनल का मतलब होता है पर यूनिट एडिशन. ठीक है ना. तो मार्जिनल यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म में बात करेंगे पर यूनिट एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट के टर्म में. ओके, जब हम पर यूनिट की बात करते हैं, अर्लियर जब मैं मैगी प्रोड्यूस कर रही थी और व्हेन आई शिफ्टेड टू पास्ता, तो मैगी की कितनी यूनिट लॉस हुई है मेरी B to E पे आई हूँ मैं मैगी में, है ना. और जब मेरा गेन कितना हुआ है पास्ता को बनाने में, तो मैंने E to D पास्ता के अंदर गेन हुआ है. तो दिस यूनिट स्पेसिफाई दी पर यूनिट
change in term of loss and gain. Okay, therefore the formula says change, per unit change in loss of good 1 by per unit gain of change in good 2. therefore अगर फिगर से निकाले तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ेगी हमारी ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम मैगी टू पास्ता विल बी BE which is our loss by ED which is our gain. Which gain? Per unit gain. Okay. Now quickly revising the formulas. First is total opportunity cost. It is loss of output 1 by gain of output 2, which was O2A and O2B total. Then MRT or marginal opportunity cost or marginal rate of transformation is per unit change in loss of good 1 by per unit gain in unit or good 2. Okay, this triangle is used here for per unit addition. Now moving ahead, PPC, as you all know, PPC ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी प्रोडक्शन स्केड्यूल की भी, क्या किस कॉम्बिनेशन में हमारी क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं. नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड आ रहा है ना नीचे की साइड, एंड व्हाई इट इज़ कॉन्केव इन शेप, कॉन्केव भी है शेप में. रीजन इज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लॉस ऑफ वन विल बी द गेन फॉर द अनदर. एक चीज़ को फॉर एग्जाम्पल जैसे पास्ता प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मैगी की यूनिट गिव अप करनी पड़ी थी या सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी, ठीक है ना. तो एक गुड में अगर मेरा लॉस हुआ है तो दूसरे में मेरा गेन भी होगा. वाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट एंड हैव ऑल्टरनेटिव. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर हियर. Now moving ahead to the slope. When I say slope, in my previous video I have explained this term slope. It is the rate of change in dependent variable in relation to the independent variable. तो स्लोप की बात करते हैं हम PPC की, तो PPC का स्लोप क्या होगा हमारा MRT which is marginal opportunity cost or marginal rate of transformation. Okay, now very important topic, why MRT is increasing. Okay, for example or assume that I am a producer. I was producing two goods, Maggi and pasta. Okay, if I say earlier in set 1 or combination 1 was I was producing 100 unit of Maggi and 0 unit of pasta. Okay, then suddenly due to change in the market मैंने देखा कि पास्ता की डिमांड आई है, ठीक है. तो मैंने क्या किया, अपनी कुछ यूनिट मैगी की गिरा दी और पास्ता की यूनिट इंक्रीज कर दी. फर्दर डिमांड इंक्रीज हुई पास्ता की, पीपल वर लाइकिंग पास्ता मोर देन मैगी. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट यूटिलाइज माई रिसोर्स इन अ एफिशिएंट मैनर. तो मैंने क्या किया, यूनिट और डिक्रीज कर दी और पास्ता की यूनिट बढ़ा दी. देयरफॉर 40-10 करते करते मैं 0 मैगी कर दी और 87 पे मैं पास्ता पे आ गई. ओके, तो MRT का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लॉस ऑफ वन बाय गेन इन ऑफ द सेकेंड वन. तो हमारा लॉस किसकी यूनिट में हो रहा है, मैगी में. मैगी इज डिक्रीजिंग, पास्ता में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, गेन हो रहा है. तो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे. तो मैगी की यूनिट में कितना चेंज आया, 100 माइनस 90 विच वॉज 10, और पास्ता में कितना गेन हुआ, 25 माइनस 0 विच वॉज 25. इफ यू डिवाइड 10 बाई 25 इट इज 0.4. ओके, सिमिलरली विल कैलकुलेट द MRT इन set 2, 3, 4, 5. Okay, and you will see the result that MRT is increasing. Earlier in my first case it was 0.4, फिर इंक्रीज हुई 0.8, फिर 1.2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 5 हुई. देयरफॉर MRT इज इंक्रीजिंग. क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि अब मैंने स्पेशलाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज लगाया. जिस चीज़ की डिमांड थी, पास्ता की डिमांड बढ़ रही थी, तो मैंने अपने रिसोर्सेज को स्पेशलाइज या एफिशिएंटली यूज करते हुए पास्ता में लगाया. वाई? बिकॉज मैं दोनों साइड तो लगा नहीं सकती थी रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट. तो मुझे क्या डिसाइड करना था कि मैं उसको एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकती हूँ. देयरफॉर मैंने उसको पास्ता पे इन्वेस्ट करने की सोचा अपने रिसोर्सेज को. तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, जब हमारा रिसोर्स, व्हेन अ रिसोर्स शिफ्ट फ्रॉम वन टू द सेकेंड गुड, पहला गुड था मैगी, हमने शिफ्ट किया पास्ता पे, तो हमारा चेंज ऑफ रिसोर्स हुआ. तो यूनिट ऑफ मैगी डिक्रीज्ड, यूनिट ऑफ पास्ता इंक्रीज्ड. देयरफॉर MRT इज इंक्रीजिंग. MRT क्या था, स्लोप ऑफ PPC. PPC का स्लोप क्या है, MRT, विच इज रेट ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व
रीजन क्या था? ड्यू टू स्पेशलाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि एफिशिएंट और स्पेशलाइज्ड वे में व्हेन आई स्टार्टेड यूटिलाइजिंग माय रिसोर्सेज, तो उसकी वजह से MRT इज इंक्रीजिंग. I hope this concept is clear. In my next videos, I'll be covering more important concept regarding this chapter and discussing few more important question and answer. Stay tuned. See you soon. Bye.